Good morning class. Today we are starting with our topic resistance of a system of resistors. सारे resistors की सिस्टम बनेगी, एक से ज़्यादा रजिस्टर होंगे, या तो सीरीज़ में लगेंगे या तो पैरेलल में लगेंगे. ठीक है. In preceding sections we learnt about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and potential difference across its ends. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. अभी Ohm's law कैसे एक से ज़्यादा resistors लगे होंगे तो Ohm's law क्या उसको अप्लाई करेगा तो कैसे इफ़ेक्ट करेगा. There are two methods of joining the resistors together. Figure 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined at end to end. Here the transistors are said to be connected in series. तो यहाँ पर नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस है. ठीक है. और तीनों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं. तो इस तरह का कनेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन. कौन सा? सीरीज़. जैसे मैं नंबर बोलता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये सारे एक सीरीज़ के नंबर है ना. Figure 12.7 shows the combination of resistors in which three resistors are connected together between the points X and Y. Here the resistors are said to be connected in parallel. तो ऊपर की सर्किट में और नीचे की सर्किट में फ़र्क क्या है कि resistors जो जुड़े हुए हैं आप देख रहे हो जैसे डायग्राम में, राइट. ये कनेक्शन जो है रेजिस्टर्स का वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, राइट. अब जब इलेक्ट्रिक करंट इस तरह की सर्किट में से पास होगा तो उसको कितना रेजिस्टेंस लगेगा, और जब वो सीरीज़ वाला कनेक्शन हमने लगाया है ऊपर का डायग्राम जो है, राइट, R1, R2, R3, तो अगर इस तरह से कनेक्शन लगाएंगे तो उसको कितना रेजिस्टेंस लगेगा. Resistors in series. What happens to the value of current when number of resistors are connected in series in a circuit? What would be their equivalent resistance? Let us try to understand this with the help of the following activity. Now join three resistors of different values in series. Connect them with a battery, ammeter, plug, and as shown in figure 12.6 you may use the resistors of value 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm. ये जो निशानी है उसको ohms बोलते हैं. तो एक रजिस्टर की वैल्यू है 1 ohm, दूसरे की वैल्यू है 2 ohm और तीसरे की वैल्यू है 3 ohms. And a battery of 6 volt for performing this activity. Plug the key, note the ammeter reading. जैसे ही प्लग डालोगे की में, राइट, तो अम्मीटर रीडिंग दिखाएगा, तो रीडिंग देख लो क्या दिखा रहा है. नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ अम्मीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स. नोट द अम्मीटर रीडिंग ईच टाइम. डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अम्मीटर. अब हम क्या कर रहे हैं कि अम्मीटर को बीच बीच में कहीं कहीं पर भी टच करके देखते हैं कि क्या वैल्यू कोई चेंज हो रही है क्या सर्किट में. यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन एन अम्मीटर इज सेम. वैल्यू जो है करंट फ्लो होने की उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. अगर सर्किट में यहाँ पर दो कनेक्शन लगा के चेक किया तो भी वही दिखाएगा, कहीं और कनेक्शन से चेक किया कितना करंट आ रहा है यहाँ पर तो भी वही आएगा. इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट मीन्स दैट इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज़ द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स. तो कहीं पर भी पूरी सर्किट में आप चेक करोगे तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में ही करंट फ्लो हो रहा है, चाहे रजिस्टर्स R1, R2, R3 अलग अलग लगे हुए हैं फिर भी. अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं हम. In activity 12.4, insert a voltmeter across the ends X and Y of the series combination of resistors as shown in figure. Plug the key in the circuit and note the voltmeter reading. It gives the potential difference across the series combination of resistors. Be it be volt. Now measure the potential difference across the two terminals of the battery
Compare the two values. Take out the plug key and disconnect the voltmeter. Now insert the voltmeter across the ends X and P of the first resistors as shown in the figure. अभी हमने क्या करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें वोल्टमीटर से पता चलेगा, कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। तो X और P के बीच में देखो, डायग्राम में देखो, X और P के बीच में वोल्टमीटर 1 लगाया है, Q और S के बीच में दूसरा वोल्टमीटर लगाया है, और T और Y के बीच में तीसरा वोल्टमीटर लगाया है। अभी देखो वोल्टमीटर जो है ना, एक का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। यहाँ पर R1 लिखा हुआ है ना, डायग्राम में देखो R1 लिखा हुआ है ना, जहाँ पर वो रेजिस्टेंस 1 है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब आपको पता है ना, रेजिस्टेंस का मतलब पता है, आप दौड़ने जा रहे हो, आपको एक जने ने पकड़ा है, तो आपको दौड़ने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। फिर आपको 2 जनों ने पकड़ा है, ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो आपको दौड़ने में ज़्यादा ताकत लगानी। चलो तो पकड़ने की बात छोड़ दो, एक टायर बांध दिया है आपके पीछे मैंने, और फिर आपको बोलता हूँ अभी दौड़ो, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी ना। बैग पीछे लेके दौड़ते हो और ऐसे ही दौड़ते हो तो किस में ताकत लगानी पड़ती है ना। और अगर 2 बैग लगा दी तो एक आगे और एक पीछे, तो ज़्यादा, और तीसरी बैग दे दी सर के ऊपर रख दी तो बहुत ज़्यादा, तो आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो R1 रेजिस्टेंस में उसमें 1 ओम का है, R2 में 2 ओम का है, और R3 में 3 ओम कैपेसिटी का रेजिस्टर लगाया हुआ है। और तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर से देखते हैं क्या आ रहा है। Plug the key and the measure the potential difference across the first resistor. Let it be V1. Similarly दूसरे के बीच में देखोगे तो V2 आएगा और तीसरे में आएगा V3. Now deduce a relationship between V total कितना होता है, देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। हमने पहले वोल्टमीटर यहाँ लगाया था, तो हमने मेज़र कर लिया V कितना आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया और R1 के बीच में एक V1 लगा दिया, R2 के बीच में दूसरा लगा दिया, और R3 के बीच में तीसरा लगा दिया। ये V1, V2 और V3, ठीक है। तो हम जब देखेंगे तो पहले हमने सिर्फ यहाँ पर लगाया था वोल्टमीटर, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। तो ये वैल्यू जो आई थी V = V1 + V2 + V3 इतनी आएगी, ठीक। You will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential differences V1, V2 and V3. That is, the potential difference across the combination of resistors in a series is equal to the sum of potential difference across individual resistors. That is, V = V1, V2, V3. ये तो हमें सिंपल सी बात समझ में आती है कि आपको प्रसन्न सर ने 2 मार्क दिए, कृष्णा सर ने 3 मार्क दिए और राकेश सर ने 4 मार्क दिए। आपका टोटल इंटरनल मार्क में देखता हूँ तो 4 + 3 + 2 आया ना समझ में कि टोटल इंटरनल मार्क्स कितने हुए। तो इन तीनों का इंटरनल टोटल कर लो तो पता चल जाएगा। अब इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.8 लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो I। अब सर्किट में करंट जितना जा रहा है, राइट, I, it is possible to replace the 3 resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance, such as the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same. Applying the Ohm's law to the entire circuit, we have V = IR. अभी
ये तीन, एक मेरे पास एक बैटरी है, टॉर्च है, इसके अंदर 3 सेल लगते हैं छोटे छोटे। रिमोट में हमारे 2 सेल लगते हैं ना, छोटे छोटे, है ना। तो एक का मान लो 1 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का एक सेल है। ऐसे मैंने कितने सेल लगाए यहाँ पर? 3 सेल लगाए, राइट। अभी मान लो मेरे पास कोई एक बड़ा सा मोटा सा सेल है, एक बड़ा सा मोटा सेल है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 3 वोल्ट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ना, ये 3 को हटा के मैं ये एक लगा दूँ यहाँ पर, भले मोटा है तो क्या हुआ, तो काम चलेगा मेरा। क्यों? 3 लगाए थे मैंने, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट वाले, तो टोटल कितना करंट चाहिए था इसको? 3 वोल्ट। अभी मेरे पास 3 नहीं है, छोटे छोटे, एक ही बड़ा सेल है, तो मैं लगाऊंगा तो चलेगा ना, वो भी तो 3 वोल्ट ही दे रहा है करंट, है ना। सो V इज इक्वल्स टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा था V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पर R जो था मेरे पास वो था R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस थे ना मेरे पास पैरेलल में या सीरीज़ में। तो अभी ये तीनों को हटा के अब आपके पीछे एक बैग लगी है, दूसरी बैग आगे लगाए रखी है और तीसरी बैग मैंने सर के ऊपर लगा रखी है, ठीक है। कितनी बैग हुई? 3 हुई ना। अभी ये तीनों बैग हटा दूँ और एक बड़ा, उसी टोटल 3 बैग का वज़न 10 किलो था, तो मैंने दूसरी एक 10 किलो की एक ही सिंगल बैग आपको लगा दी, तो चलेगा? चलेगा ना, वज़न तो 10 किलो ही है। अभी 3 बैग उठाओ या 1 बैग उठाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? On applying Ohm's law, the 3 resistors separately, we further have V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3. So from equations IR is equals to R1 plus R2 plus R3, तो दोनों तरफ से करंट तो सेम जा रहा है I और I, तो उसको हटा दो, तो RS का मतलब होता है सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज जो होती है वो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 बैग हटा के मैं एक ऐसी 10 किलो वाली बैग लगा दूँ और फिर आपको दौड़ने को बोलूँ तो चलेगा, क्योंकि वज़न तो 10 किलो ही है, ज़रूरी नहीं है कि 3 बैग लगानी है मुझे। સેનામાંથી? સ્કૂલમાંથી મંગાવી હતી, ઓનલાઈન આવી. હા ભાઈ હજી આવી નથી મેમ છે ને. કાલે હું આવ્યો તો કે હું લઈને કઢાવીને રાખું છું, આજે આવ્યો તો કે હજી આવ્યા નથી, તો હું રોજ રોજ રાખું છું, એ થયો મને. કાલે આવ્યો તો કઢાવી. So we conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals the sum of their individual resistance R1, R2 and R3 and is thus greater than any individual resistance. तो R1 का रेजिस्टेंस, R2 का रेजिस्टेंस और R3 का रेजिस्टेंस, टोटल तीनों का करोगे तो जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा वो इंडिविजुअल से बड़ा ही होगा ना। देखो आपकी एक बैग थी वो 2 किलो की थी, दूसरी बैग थी वो 3 किलो की थी और तीसरी बैग थी वो 5 किलो की थी। अब हमने ये तीनों बैग हटा दी और उसके जगह एक 10 किलो की बैग लगा दी। अब ये 10 किलो की बैग जो है वो इंडिविजुअल 2 किलो से ज़्यादा ही है, 3 किलो से भी ज़्यादा ही है और 5 किलो से भी ज़्यादा ही है, क्योंकि वो 10 किलो है। तो इंडिविजुअल एक से ज़्यादा है, लेकिन तीनों का टोटल करोगे और इसका करोगे तो दोनों सेम ही आएगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज़ 20 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस लैम्प लगाया गया है जिसकी 20 ओम्स की कैपेसिटी है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, उसके अंदर 4 ओम का एक रेजिस्टेंस दूसरा लगाया गया है, आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। नाउ कैलकुलेट करना है हमें द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, एंड दूसरा द करंट थ्रू द सर्किट, उसमें से करंट कितना जाता है,
और तीसरा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर में से कितना जाता है, वो तीन चीज़ें हमें मेज़र करनी है। ये सर्किट हमको दी गई है, ठीक है। सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम का है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज़, उसका जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है R2 वो है 4 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, बल्ब का और रेजिस्टर दो लगाया उसका, तो 20 + 4 24 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज़ 6 वोल्ट। बैटरी हमने कितनी लगा रखी है, 6 वोल्ट की। अभी देखो फॉर्मूला हमें पता है, करंट का क्या है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, राइट। अभी हमें पता है कि बैटरी तो 6 वोल्ट की लगा रखी है, हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है और रेजिस्टेंस हमने लगाया है 24 टोटल हो रहा है दोनों का। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा तुम्हारा, डिवाइड करो। हाँ, नाउ बाय ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, करंट कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय आई इंटू नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, I इज इक्वल्स टू V बाय R है। तो 6 डिवाइडेड बाय 24, तो 6 1 जा 6 4 जा 1.4 यानी कि 0.25 एम्पियर करंट जा रहा है हमारा उसमें से, ठीक है। हाँ ले लो बेटा। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प, applying Ohm's law to the electric lamp and conductor separately, we get the potential difference across the electric lamp। तो V1 हमें लगाना है, applying Ohm's law and the conductor separately। तो पहले में जितना आया 20 ohms इंटू 0.5, करंट कितना जा रहा है हमारा, V निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू R। देखो ये हमें पता चल गया, ये 6 वोल्ट का था, ठीक। तो पहले की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1, V1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.25 यानी कि 5 वोल्ट आएगा। and that across the conductor V2 is equals to 4 ohm into 20 0.25, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। Suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistor. Its resistance must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminals will cause a current of 0.25 ampere in the circuit. So the resistance equivalent R of this resistor would be, R की जब ये दो रेजिस्टेंस है कितना, दो, एक बल्ब का और दूसरा एक रेजिस्टर हमने खुद लगाया है, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हुआ 24,
4 लगाया और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना था? बल्ब का रेजिस्टेंस तो पहले से दिया हुआ है ना हमें 20 और 4 का हमने रेजिस्टेंस लगाया तो टोटल 24 हुआ हमारा, है ना। तो अभी हम क्या करें, ये दोनों को हटाना है। द रेजिस्टेंस R ऑफ दिस इक्विवेलेंट रजिस्टर वुड बी R इज इक्वल्स टू V बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस I, V हमने बैटरी जो लगा रखी है वो है 6 वोल्ट की, और उसमें से करंट कितना जा रहा है हमारा करंट कितना जा रहा है 0.25 टोटल जा रहा है ना, राइट। तो 0.25 का क्या मतलब होता है 1/4। This is the total resistance of the series circuit. It is equal to the sum of two resistance. तो 2 लगाया हमने 20 और 4 का, तो टोटल हो गया 24। तो कोई भी एक लगाना है हमें, सेम करंट जाना चाहिए, सेम बैटरी है, तो 24 ओम का लगाना पड़ेगा हमें। अब बात करते हैं पैरेलल की हम। किसकी? Let us consider the arrangement of 3 resistors joined in parallel with a combination of cells as shown in figure 12.7। अभी बाजू का जो डायग्राम दिख रहा है ना तुम्हें, इसमें देखो रजिस्टर R1 नीचे वहाँ पर 12.10 फिगर, R1 रजिस्टर है, R2 दूसरा रजिस्टर है और R3 तीसरा रजिस्टर है। ये तीनों कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, पहले हम जो कर रहे थे ना, R1, ठीक है, फिर दूसरा R2, ठीक है, फिर तीसरा R3, और यहाँ पर हमने लगाया है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से कितना जा रहा है देखने के लिए, राइट। और ये बैटरी, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पर है की और यहाँ पर है एमीटर जो मेज़र करेगा इस सर्किट में से करंट कितना जा रहा है। अब मान लो अगर मैं ये हटा दूँ R1, ठीक है, अगर कहीं बल्ब रखा है तो बल्ब तो जलेगा ही, है ना। सर्किट कहीं ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही है ना। इधर बोर्ड के ऊपर देख के बताओ, करंट यहाँ से जाएगा घूम के और यहाँ पर आ जाएगा, सर्किट कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही। मान लो ये मैं 2 हटा देता हूँ बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, ठीक है। अभी भी करंट तो जाएगा ही इसी में से, ठीक है। इसी तरह ये तीसरे को भी हटा सकता हूँ ना मैं। तो ये जब सीरीज में जा रहे थे, R1 यहाँ था, R2 यहाँ था और R3 यहाँ था, ये सीरीज में जा रहे थे जब, तब हमको R, कैपिटल R कैसे मिल रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का टोटल मिल रहा था, राइट। ये था हमारा RS सीरीज में जब लगाया था। लेकिन अभी हमने यहाँ पर कैसे लगा रखा है, पैरेलल में लगा रखा है, तो 1, 2 और 3 तीनों पैरेलल समांतर लगाया है। अब क्या आएगा रेजिस्टेंस, मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन XY of 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively.
कनेक्ट इट विथ ए बैटरी, अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। अ प्लग की एंड एन अमीटर as shown in the figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note